have discussed very basic concepts about platelet disorders. So it was very necessary to go through them just before the start of the main topic, which is platelet disorders. So if you want to get this video, the link is in the description. So okay, so here there was a little confusion in the last video. This tissue factor is actually factor 3. So tissue factor is not factor 7, it is factor 3. So factor 3 is known as the tissue factor, and whenever it comes under any stress or injury, it is going to activate the factor 7, which is going to initiate the extrinsic pathway. So moving on to today's lecture, which is platelet disorders. So first of all, you just need to know what is the normal platelet count. The normal platelet count is 150,000 to 400,000 per microliter of blood. So any platelet count lower than 150 is known as thrombocytopenia. And similarly, the higher platelet counts is known as thrombocytosis. So what are the features of thrombocytopenia? The important features of thrombocytopenia: number 1, petechias, as we have already discussed it in the last lecture. So petechia, purpura, even ecchymosis, mucosal bleeding. So by mucosal bleeding, I mean bleeding from any mucous membranes. So नाक से, कान से, गले से, from the genitourinary tract or GIT tract, तो जहाँ से भी bleeding होगी, it comes under the heading of mucosal bleeding. So इसमें कभी कभार intracranial bleed भी हो सकती है. So just to memorize this, कि जो भी petechias हैं वो lean हैं, that are generally less than 2 millimeter. Purpura are generally 4 to 10 millimeter, and ecchymosis is more than 10 millimeter, and 10 millimeter is actually 1 centimeter. So when you talk about the platelet disorders, there can be quantitative platelet disorder or qualitative. So first we'll focus on the quantitative disorders. अब quantitative का मतलब क्या है कि इसमें platelet count जो है ये कम हो गया है, so actually thrombocytopenia हो गया. और qualitative disorders या qualitative defects का मतलब ये है कि platelet count is itself normal, लेकिन platelet की functioning जो है वो disturbed है. So जैसे हम आगे पढ़ेंगे, there can be Bernard-Soulier syndrome, that is the defect in the glycoprotein 1b, जो कि रिसेप्टर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में. और it can be von Willebrand disease, or it can be Glanzmann thrombasthenia. It is actually a defect of glycoprotein 2b3a, जिसको हमने फाइब्रिनोजन रिसेप्टर भी बोला था. सो अगर प्लेटलेट की फंक्शन में कोई डिफेक्ट है और प्लेटलेट नंबर इटसेल्फ नॉर्मल है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट. लेकिन जिसमें प्लेटलेट काउंट ही कम है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिफेक्ट. चाहे क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो, चाहे क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो, प्लेटलेट काउंट कम है या प्लेटलेट फंक्शन डिस्टर्ब है, इन एनी केस देयर विल बी डिफेक्टिव प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. और डिफेक्टिव प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को, रिकॉलिंग द लास्ट लेक्चर, हमने बोला था डिफेक्टिव प्राइमरी हीमोस्टेसिस. सो जब भी डिफेक्टिव प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी, यू विल फाइंड दीज साइंस एंड सिम्टम्स. इन साइन एंड सिम्टम्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी डिफेक्टिव प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी, देयर विल बी एन इंक्रीज इन दी ब्लीडिंग टाइम. अब ब्लीडिंग टाइम क्या है, तो इतना ये कॉमनली आजकल के दिनों में ये टेस्ट नहीं किया जाता, बट प्रीवियसली करते ये थे कि स्किन में छोटा सा कट लगाते थे और देखते थे कि ब्लीडिंग कितने टाइम पे कंट्रोल होती है. सो ब्लीडिंग जो है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज़ 2 to 7 minutes.
तो अगर 7 मिनट से ऊपर ब्लीडिंग टाइम चला जाए तो वी कैन से कि इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। सो व्हेन एवर देयर इज़ अ प्लेटलेट डिफेक्ट, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। सो अभी हम फोकस करते जाएंगे जितने भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स हैं तो उसको हम इन्यूमरेट करते हैं और साथ साथ उनकी थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते जाते हैं। सो फर्स्ट विल डिस्कस क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स। तो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स नाम से पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड बाय थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आई मीन प्लेटलेट काउंट लेस देन 150,000 पर माइक्रोलीटर्स। तो उसमें वो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो तो आएंगे। सो वन ऑफ द कॉजेज इज़ इरेडिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पोस्ट कैंसर या कैंसर थेरेपी में हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। देर आर सर्टन ड्रग्स दैट मे लीड टू इट और देर मे बी सर्टन केमिकल्स। सो वो क्या हैं ये आगे हम देखते जाएंगे। नंबर टू पे एक्यूट ल्यूकीमिया। जब भी ल्यूकीमिया का पेशेंट होगा उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम होंगे। सो डिटेल्स विल बी इन द ल्यूकीमिया वीडियो, बट ये है कि लेट्स सपोज ये बोन मैरो है और यहाँ पे बोन मैरो के अंदर दीज आर मेगाकैरियोसाइट्स। तो मेगाकैरियोसाइट्स से नॉर्मली प्लेटलेट को बनाना था, बट एक्यूट ल्यूकीमिया में क्या होगा, ऑल दीज सेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्लास्ट सेल्स। तो ब्लास्ट सेल्स आएंगे तो मेगाकैरियोसाइट्स को जगह ही नहीं मिलेगी। सो इवेंचुअली देयर विल बी अ डिक्रीज इन द प्लेटलेट। अनदर कॉज इज एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में अभी के लिए जस्ट मेमोराइज बेंजीन। सो बेंजीन एक्सपोजर की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है और बहुत से ऑटो इम्यून कॉजेज़ भी हैं एप्लास्टिक एनीमिया के विच विल इवेंचुअली लीड टू अ डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। फोर्थ वन इज़ स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन। तो अगर स्प्लीन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तो इट विल ऑल्सो लीड टू लो प्लेटलेट काउंट। इसके बाद वन थिंग इज़ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स। सो अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हों तो इसमें भी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। तो इवेंचुअली प्लेटलेट काउंट को तो कुछ भी नहीं हो रहा, प्लेटलेट काउंट तो उतने ही है, बट दिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ ड्यू टू डाइल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज़ DIC. So DIC is widespread clotting factor activation. तो वाइड स्प्रेड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेशन हो जाएगी जिसकी वजह से इट विल लीड टू अ थ्रोम्बो एम्बोलिक स्टेट, जिसमें होगा क्या कि बहुत सी एक्टिवेशन की वजह से देयर विल बी कंजम्पटिव कोगुलोपैथी के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे। सो इट इज़ कंजम्पटिव कोगुलोपैथी। सो इसकी वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन दी थ्रोम्बोसिस, क्योंकि जब सारे का सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स का जितना भी सिस्टम है ये एक्टिवेट होगा तो जगह जगह पे क्लॉट्स बनेंगे, जगह जगह पे थ्रोम्बोसिस होगी। और जब ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे, तो बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन दी ब्लीडिंग एपिसोड्स। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ DIC? तो कॉजेज ऑफ DIC के लिए याद करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर अ निमोनिक SSS TOP टॉप। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव stroke, then snake bite, then sepsis और ख़ास तौर पे ग्राम नेगेटिव। T4 trauma, O4 obstetric complications, very important, and P is for pancreatitis. So high yield points ये हैं कि किसी भी सिनेरियो में, एनी सिनेरियो विद रिमोट डिलीवरी, एनी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जिस तरह प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर रिटेन
प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, कोई भी तरह का किसी भी तरह का ऑब्स्टेट्रिक केस जो है ख़राब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के साथ आएगा और साथ अगर सारी की सारी लैब्स डिरेंज होती हैं, देन सिंपली यू हैव टू क्लिक DIC। इसके अलावा कोई भी सिनेरियो जो सेप्सिस के साथ आएगा या ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के साथ आएगा और साथ डिरेंज्ड लैब्स हैं, सो यू हैव टू सेलेक्ट DIC इन दिस केस। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके बारे में आता है, विच फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन eliciting DIC। तो eliciting DIC के लिए यू हैव टू राइट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, and tissue thromboplastin is also known as tissue factor or factor 3. What is the useful diagnostic test in this case? यहाँ पर होगा D dimers. Now, अब D dimers को समझने के लिए फर्स्ट हम देख लेते हैं कि बाकी जो है वो लैब्स किस तरह की आती हैं इन केस ऑफ DIC। तो अगर हम DIC की लैब्स को देखें तो सारी की सारी लैब्स डिरेंज होंगी, सारी की सारी लैब्स, बिकॉज इट इज़ अ कंजम्पटिव कोगुलोपैथी। सो व्हाट विल हैपन टू द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट काउंट विल बी डिक्रीज्ड, और मैंने जब बताया था कि जब भी प्लेटलेट काउंट कम होगा इवेंचुअली ब्लीडिंग टाइम विल बी रेज्ड। व्हाट अबाउट प्रोथ्रोम्बिन टाइम? प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है फॉर द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जितने भी लैब्स हैं, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उन सब की कंजम्पशन हो जाएगी, सो इट विल गोइंग टू इंक्रीज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पे यहीं पे ही समझ लेते हैं इसको कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए याद रखना है आपने प्ले टेनिस। तो टेनिस जो है वो आउटसाइड खेली जाती है, बाहर खेली जाती है आउटडोर्स में। सो प्ले टेनिस इज़ PT, आउटसाइड इज़ फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो हैं 1, 2, 5, 7 एंड 10। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 ने एक्टिवेट करना था 10 को, 10 ने एक्टिवेट करना था 2 को, 2 ने एक्टिवेट करना था 1 को, और यहाँ पर 10 से 2 में जाने के लिए यहाँ पे था कोफैक्टर 5। सो ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज़ करते हैं। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ फॉर द एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। इसके अलावा 1, 2, 5, 7, 10 ये क्लोटिंग फैक्टर्स का जब भी मसला होगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी रेज्ड। सो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होना चाहिए? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ 10 to 13 सेकेंड्स। तो DIC में प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी इंक्रीज्ड। सिमिलरली एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो अब APTT किस लिए होता है? APTT इज़ फॉर द इंट्रिंसिक पाथवे एंड द कॉमन पाथवे। सो इसके बारे में एक बात याद रखें कि APTT इज़ फॉर ऑल द क्लोटिंग फैक्टर्स। तो किसी भी क्लोटिंग फैक्टर का मसला होगा तो APTT लाजमी रेज होगा। तो इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ इट रीड्स द डिफेक्ट ऑफ ऑल द क्लोटिंग फैक्टर्स लेस फैक्टर 7 एंड 13। तो 7 और 13 के अलावा किसी भी क्लोटिंग फैक्टर का मसला होगा तो APTT रेज होगा। APTT इज़ फॉर द इंट्रिंसिक पाथवे। तो उसको याद रखने के लिए जस्ट मेमोराइज दिस निमोनिक दैट प्ले टेबल टेनिस, एंड टेबल टेनिस खेली जाती है इंडोर में, इनसाइड। सो APTT इज़ फॉर the intrinsic pathway. So normal APTT is 25 to 36 seconds। तो ये भी DIC में रेज्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा जो फाइंडिंग्स आएंगी DIC में, उसमें इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स में एक है फाइब्रिनोजन लेवल्स। तो फाइब्रिनोजन लेवल्स इसमें कम हो जाएंगे। फाइब्रिनोजन के बाद एक याद रखें, फाइब्रिनोजन
degradation products also known as D-dimers, they are going to be raised. अब डी डाइमर से बात शुरू हुई थी, तो डी डाइमर हैज़ नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. अब नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है इसकी DIC में, एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल डायग्नोस्टिक टेस्ट बिकॉज अगर ये नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स कि देयर इज़ नो ऑनगोइंग DIC. सो क्विकली विल कवर अनदर हाई यील्ड पॉइंट. अगर एक सिनेरियो है जिसमें किसी भी पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हो गई है और अभी स्प्लीनेक्टमी के बाद उसको सेप्सिस हो गया है और सेप्सिस के बाद उसकी सारी लैब्स डीरेंज्ड हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ द सिनेरियो ऑफ DIC. अब स्प्लीनेक्टमी में क्या है, इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो आपने याद करना है. विल डिस्कस दैट इन दी टॉपिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं, क्योंकि स्प्लीन की वजह से यू आर नॉट ससेप्टेबल टू वेरियस इन्फेक्शन. सो जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं उनके इन्फेक्शन से आप बचे रहते हैं. सो जब स्प्लीन नहीं होगी देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ सेप्सिस फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव organisms, and gram negative organism is going to this sepsis is going to lead us to DIC. सो ये DIC के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो गई. अभी तक हम पहुँचे थे 6 DIC पे. अभी हम इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. 7th इसमें जो पॉइंट है या कॉजेज़ की हम बात कर रहे थे उसमें है ITP. सो ITP इज़ बेसिकली इम्यून thrombocytopenia purpura. So the typical scenario of ITP will always involve a child. तो जनरली बच्चे की बात हो रही होगी और साथ जो है ना कहीं इसका जिक्र होगा कि कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद या फिर आफ्टर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री, वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री प्लस अ चाइल्ड शुड अलर्ट यू कि सिनेरियो में ITP की बात होनी है. सो जनरली ये बच्चों में होती है और जो बच्चों में होगा दैट विल बी एन एक्यूट केस ऑफ ITP. और अगर कहीं ये एडल्ट्स में मिलता है तो इट विल बी अ क्रोनिक केस ऑफ ITP. अब इस सिनेरियो में होगा क्या कि देयर विल बी एन हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन और वायरल इन्फेक्शन प्लस अ वेरी लो प्लेटलेट काउंट. तो प्लेटलेट काउंट बहुत कम होगा और यू नो कि जब भी प्लेटलेट काउंट कम होगा ब्लीडिंग टाइम विल बी रेज्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट कंफ्यूज करने के लिए दे मे ऑल्सो राइट इन द सिनेरियो जाइंट प्लेटलेट्स. तो जाइंट प्लेटलेट जनरली आपको मिलती हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरी लो प्लेटलेट काउंट है और वैक्सीनेशन और वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, सो ऐसे सिनेरियो में यू विल क्लिक ITP. अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि ITP में हमेशा देयर विल बी अ लैक ऑफ पैल्पेबल स्प्लीन. सो अगर सिनेरियो में कहीं स्प्लीनोमेगली हो गई है या स्प्लीन पैल्पेबल है देन इट कैन नॉट बी अ सिनेरियो ऑफ ITP. सो अब ITP में होता क्या है, ITP में क्योंकि ये इम्यून है सो देयर आर ऑटो एंटीबॉडीज़. बिकॉज ऑटो इम्यून है तो देयर विल बी ऑटो एंटीबॉडीज़. तो अगर मैं नेमली बताऊँ कौन सी एंटीबॉडीज़ है तो कभी कभार सिनेरियो में जिक्र होता है एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी का, लेकिन स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटीबॉडीज़ मिलती हैं आपको ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर के अगेंस्ट, एंड यू नो 2B and 3A इज़ फॉर फाइब्रिनोजन. तो इन एंटीप्लेटेड एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3A इवेंचुअली जब एंटीबॉडीज़ बाइंड कर लेंगे इनके साथ और यहाँ पे प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, और जब भी प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी इट विल इवेंचुअली लीड टू लो प्लेटलेट काउंट. तो
तो यहाँ पर ये आपका ITP कवर हो जाता है। तो जनरली इसके कॉजेज़ हैं इडियोपैथिक, देयर कैन बी वायरल इन्फेक्शंस, और जो वायरल इन्फेक्शंस में सिनेरियो में कंफ्यूज करने के लिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का जिक्र भी हो सकता है, और इसके अलावा देयर कैन बी अ केस ऑफ SLE अलोंगसाइड ITP। सो क्विकली टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट में सिंपली बिकॉज ऑटो इम्यून है, डोंट फॉरगेट स्टेरॉइड्स देंगे, और सीवियर केस है तो IVIG देंगे, IVIG करेंगे या फिर प्लाज्मा फेरेसिस कर लेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉज विच इज़ माइक्रो thrombotic microangiopathies। So जो भी माइक्रो एंजियोपैथीज़ हैं, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़, दे मे प्रेजेंट एज DIC, बट जो DIC की लैब्स हैं उस तरह की फाइंडिंग्स इसमें नहीं आएंगी, बट लैब्स विल टेल अनदर स्टोरी। तो यहाँ पर दो तरह की थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़ हैं, वन इज़ TTP and the other is HUS. So TTP is thrombotic thrombocytopenia purpura, and HUS is hemolytic uremic syndrome। सिनेरियो में TTP के सिनेरियो में देर विल बी टिपिकली अ फीमेल इन द सिनेरियो, एंड HUS के सिनेरियो में देर विल बी अ चाइल्ड। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो TTP इज़ ड्यू टू इनहिबिशन और डेफिशिएंसी ऑफ ADAMS13 which is a von Willebrand factor metalloprotease। सो प्रोटीएज का मतलब है कि इट हैज़ टू ब्रेक डाउन। तो जब वॉन विलीब्रैंड की मेटालोप्रोटीएज एब्सेंट होगी या काम नहीं कर रही, तो इट इज़ गोइंग टू लीड टू डिक्रीज इन दी डिग्रेडेशन ऑफ वॉन विलीब्रैंड फैक्टर मल्टीमर्स। इससे क्या होगा, जब वॉन विलीब्रैंड फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, देन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन दी प्लेटलेट एडहियन। तो एडहियन इज़ द वर्ड है, एडहियन को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर का काम ही प्लेटलेट एडहियन कराना है। सो इसलिए हम वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ को एडहियन डिफेक्ट भी बोलते हैं। सो दैट इज़ वाई वी से दैट वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ इज़ एन एडहियन डिफेक्ट। तो यहाँ पे इंक्रीज इन दी प्लेटलेट एग्रीगेशन भी साथ होगी एंड एडहियन भी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ HUS, तो यहाँ पे इट इज़ ड्यू टू STEC। सो STEC इज़ बेसिकली S for Shiga, T for toxin, so it is basically Shiga toxin producing strain of E. coli, so which is जो आपने माइक्रो में भी पढ़ा था O15787। So talking about the presentation, the both are presented like with the same sign and symptoms। So इसकी जो presentation है दोनों की, it forms a triad। तो उस ट्राइड में सबसे पहले चीज़ जो अंडरस्टूड है, जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, वो है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। सेकेंड थिंग इज़ माइक्रो एंजियोपैथिक का मतलब है कि छोटी स्मॉल वेसल्स में हीमोलिटिक एनीमिया। एंड द थर्ड थिंग इज़ AKI, और AKI का मार्कर होता है क्रेटिनिन। तो जब भी एक्यूट किडनी इंजरी होगी देयर विल बी अ रेज्ड क्रेटिनिन। तो इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन होगी, दोनों की सेम है। जब दोनों की प्रेजेंटेशन सेम है तो फिर इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो TTP है इसमें इस ट्राइड के साथ साथ
there can be a history of fever and there can be a neurological symptom as well. तो याद रहे कि इवन द हेडेक इज़ अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम. तो इवन अगर फीवर है, हेडेक है और ये तीन चीज़ें आ रही हैं तो यू हैव टू क्लिक TTP. और अगर दूसरी साइड पे बात करें तो ऑब्वियसली शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है ई कोलाई का, तो इस ट्राइड के साथ ब्लडी डायरिया होना चाहिए. सो ब्लडी डायरिया अगर आ जाते तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड सिंपली मार्क HUS. सो टॉक अबाउट द लैब्स. अगर लैब्स की बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नॉर्मल PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि यहाँ पर सिम्टम्स जो हैं ये प्रेजेंटेशन इसकी लेट सपोज अगर ब्लीडिंग के साथ होती है या माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया की तरह की होती है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है इसको DIC के साथ, क्योंकि जब लैब्स दी गई होंगी तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी नॉर्मल, इवन द APTT शैल बी नॉर्मल. और ओनली डिफेक्ट जो आपको मिलेगा वो प्लेटलेट काउंट की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब भी होता है देयर विल बी इंक्रीज इन दी ब्लीडिंग टाइम. सो सिंपल यही बात है. जल्दी से इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर TTP है तो सिंपली यू गिव स्टेरॉइड्स प्लाज्माफेरेसिस कर दें या फिर बायोलॉजिक्स में रिटुक्सीमैब. एंड इन केस ऑफ HUS द ट्रीटमेंट इज जनरली सिम्टोमेटिक. एंड नाउ मूविंग ऑन टू दी qualitative platelet defects. सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ की. सो जस्ट पहली लाइन जो याद रखनी है, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे. इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि इसमें होता ये है कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन दी क्वांटिटी एंड फंक्शन ऑफ वॉन विलीब्रैंड फैक्टर. सो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर इसमें कम हो जाता है. और वॉन विलीब्रैंड का फंक्शन क्या है? दिस वॉन विलीब्रैंड फैक्टर कैरीज एंड प्रोटेक्ट्स दी फैक्टर 8. अब फैक्टर 8 अगर हम इंट्रिंसिक पाथवे को थोड़ा सा रिवाइज करें सो 12, 11, 9 टू द कॉमन पाथवे और यहाँ पर 8 एज अ को फैक्टर. सो दिस फैक्टर 8 ये प्रोटेक्टेड नहीं रहता अगर वॉन विलीब्रैंड फैक्टर ना हो, जिसकी वजह से वी कैन से दैट इट इज़ एन डिफेक्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे. और इसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन दी APTT जब भी वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ का सिनेरियो आएगा. सेकंड चीज़ जो है इसमें वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ में वो ये है कि देयर विल बी अ सॉरी क्या हो गया इसको. ओके. तो दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ अ डिफेक्ट इन दी प्लेटलेट एंड वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एडहिजन. तो हमने प्लेटलेट प्लग में पढ़ा था कि प्लेटलेट ने वॉन विलीब्रैंड के साथ जाकर मिलना होता है थर्ड स्टेप में, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है और इवेंचुअली प्लेटलेट प्लग बनता है. सो इस सारे सिनेरियो में वी कैन सिंपली राइट हियर कि इट लीड्स टू अ डिफेक्ट इन दी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन प्राइमरी हीमोस्टेसिस है और प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस जब भी डिफेक्टिव होगी तो इसमें ब्लीडिंग टाइम इज़ गोइंग टू इंक्रीज़. अब ब्लीडिंग टाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो. सो इट्स बेसिकली अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट. तो यहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट है इट इज़ गोइंग टू रिमेन नॉर्मल. तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें भी की हैं लेट्स जस्ट राइट इट हेयर कि इसमें प्लेटलेट काउंट को क्या होगा. प्लेटलेट काउंट इज़ गोइंग टू रिमेन नॉर्मल बट ब्लीडिंग टाइम इज़ गोइंग टू बी रेज्ड. PT पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी नॉर्मल क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम तब ही डिफेक्टिव होना है
अगर 1, 2, 5, 7, 10 में से किसी का कोई डिफेक्ट हो, तो जबकि यहाँ पे किसी का डिफेक्ट नहीं है। एंड APTT इज़ गोइंग टू बी रेज्ड, क्योंकि फैक्टर 8 प्रोटेक्टेड नहीं होता अगर वॉन विली ब्रांड फैक्टर ना हो तो। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, it is most of the time it is autosomal dominant, जिसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन आर इक्वली अफेक्टेड। तो ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिजीज इज epistaxis or menorrhagia. Menorrhagia is basically increase in the volume and flow of the menstrual fluid. यहाँ पर आपको ये बात याद रहे that it is the most common inherited bleeding disorder. तो इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए? सो ट्रीटमेंट में वी कैन सिंपली गिव वॉन विली ब्रांड फैक्टर कंसनट्रेट, क्योंकि डिफेक्टिव वॉन विली ब्रांड का है जिसकी वजह से फैक्टर 8 ख़राब है, क्योंकि फैक्टर 8 की इनहेरेंट एफिशिएंसी तो है नहीं। तो सिंपली यू कैन गिव वॉन विली ब्रांड फैक्टर कंसनट्रेट और ये ट्रीट हो जाएगा। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो यू कैन ऑल्सो गिव क्रायोप्रेसिपिटेट्स। वाई सो? बिकॉज क्रायोप्रेसिपिटेट में वॉन विली ब्रांड फैक्टर भी होता है, फैक्टर 8 भी होता है, फैक्टर 13 भी होता है, फाइब्रिनोजेन भी होता है और फाइब्रोनेक्टिन भी होता है। सो बेसिकली ये 5 चीज़ें होती हैं क्रायोप्रेसिपिटेट में। सो बेसिकली अगर तो वॉन विली ब्रांड कंसनट्रेट ऑप्शन में है तो क्लिक दैट, बट अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन गिव वॉन विली ब्रांड क्रायोप्रेसिपिटेट because von Willebrand factor is present in the cryoprecipitate as well. Another such disorder of qualitative platelet defects is Bernard-Soulier syndrome. अब basically Bernard-Soulier syndrome is also a defect of adhesion, just like von Willebrand disease. अब इसमें क्या है? देयर इज़ अ डिफेक्ट इन ग्लाइकोप्रोटीन 1b एंड ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो रिसेप्टर है प्लेटलेट के ऊपर, इट इज़ फॉर वॉन विली ब्रांड फैक्टर, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से देयर विल बी अ डिक्रीज इन दी प्लेटलेट वॉन विली ब्रांड फैक्टर एडहियन। सो क्लिनिकली ये सिनेरियो में यू विल फाइंड बिग प्लेटलेट्स। सो जनरली देयर विल बी बिग प्लेटलेट्स। लैब्स में प्लेटलेट काउंट मे बी नॉर्मल और स्लाइटली डिक्रीज्ड। आई एम सेइंग स्लाइटली डिक्रीज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है और वैक्सीनेशन की हिस्ट्री होती है देन यू हैव टू सेलेक्ट ITP। यहाँ पर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी हो सकता है, या अगर कम दिया हो तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, बट ब्लीडिंग टाइम रेज्ड होगा। रीज़न बीइंग कि प्लेटलेट डिफेक्ट है, प्लेटलेट नंबर नॉर्मल बट ब्लीडिंग टाइम रेज्ड। दिस इज ऑल you need to know about Bernard-Soulier syndrome. Another such qualitative platelet defect is Glanzmann thrombasthenia. It is actually a defect of platelet aggregation. It is due to deficiency of glycoprotein 2b and 3a. Next very important topic is hemophilia. There can be hemophilia A, hemophilia B or hemophilia C. Hemophilia A is due to deficiency of factor 8, hemophilia B deficiency of factor 9 and C defect in factor 11. Hemophilia A is X-linked recessive. B is also X-linked recessive and C is autosomal recessive.
So X-linked recessive, it is very important because it will only affect the male child of the family and females can only be the carriers. So इसके सिनेरियो में होगा क्या? इसके सिनेरियोज में लेट्स सपोज एक यंग एज का बच्चा है, लेट्स से 5 years old, और वो होगा टिपिकली मेल. अब इसमें सिनेरियोज में हो क्या क्या सकता है? इट कैन प्रेजेंट विद पेनफुल और यू कैन से टेंडर स्वॉलन नी जॉइंट, क्योंकि बच्चे बार बार गिरते हैं अपने नीज़ पे, तो नी स्वॉलन होंगी, टेंडर होंगी, पेनफुल होंगी, ऐसा सिनेरियो आ सकता है. इसके अलावा हिस्ट्री आ सकती है ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसिजन, or there can be history of profuse bleeding from the umbilical stump. तो पैदाइश के बाद जो है ना बच्चा बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड करेगा, तो इस तरह की कोई हिस्ट्री आ सकती है. और सिमिलरली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो सकती है आफ्टर एनी डेंटल प्रोसीजर. सो इस तरह के टिपिकल सिनेरियोस हीमोफीलिया के बारे में आते हैं. सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. 12, 11, 9, 10 और यहाँ पर 8. इट इज़ बेसिकली या तो फैक्टर 8 डिफेक्टिव है, या फैक्टर 9 डिफेक्टिव है, या फैक्टर 11 डिफेक्टिव है. तो बेसिकली ये इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट है. सो इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट जब भी होता है तो उसमें APTT इज़ गोइंग टू बी रेज्ड, और क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में मसला नहीं है सो PT इज़ गोइंग टू बी रिमेन नॉर्मल. सो यहाँ से आई कैन से कि हीमोफीलिया A is the most common cause of deranged APTT with normal PT. So from here one last thing कि यहाँ पे जितनी भी ये डेफिशिएंसीज हम बता रहे हैं फैक्टर 8 की या फैक्टर 9 की या फैक्टर 11 की, इसमें मोस्ट कॉमन इज़ फैक्टर 8 विच इज़ हीमोफीलिया A, नंबर 1. नंबर 2, it is actually the deficiency, not absolute absence. Okay, so इसकी हम बात करते हैं डायग्नोसिस की. To diagnose hemophilia, simply you have to get factor 8 assays. तो फैक्टर 8 के लेवल देखने हैं, अगर फैक्टर 8 के लेवल कम है तो इट इज़ हीमोफीलिया. सिमिलरली फैक्टर 9 के और सिमिलरली फैक्टर 11 के जिस भी हीमोफीलिया को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इज़ हीमोफीलिया A. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया A, सिंपली यू नीड टू नो कि इसमें हमने फैक्टर 8 कंसनट्रेट देने हैं. लेकिन अगर ऑप्शन में फैक्टर 8 कंसनट्रेट नहीं होता देन यू कैन ऑल्सो गिव क्रायोप्रेसिपिटेट. और नाउ यू नो कि क्रायोप्रेसिपिटेट हम क्यों दे सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ फैक्टर 8, it has factor 13, it has von Willebrand factor, fibrinogen और fibronectin. ये आई बिलीव कि मैंने पीछे भी इसको लिख दिया. येस, राइट हेयर. सो मूविंग फर्दर, अगर क्रायोप्रेसिपिटेट भी ऑप्शन में नहीं है तो यू कैन ऑल्सो गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. और इवेंचुअली लास्ट में आप पूरा का पूरा होल ब्लड भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली इन दोनों में ही आपको कंफ्यूज करेगा. और फैक्टर 8 में भी आइदर there can be two options, minor component और major component. So अगर minor और major की बात आती है then you have to select the minor component, क्योंकि हीमोफीलिया में there is a defect in the factor 8 minor component. So minor component की जगह यहाँ पर small component भी लिखा जा सकता है और light chain भी लिखा जा सकता है. They all mean the same. तो ये बहुत सी जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में. तो एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं. जो हिस्ट्री ऑलरेडी आपको बताई है वो हिस्ट्री आएगी, और इसमें प्लेटलेट काउंट को क्या होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल होना चाहिए. अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा और कोई क्वालिटेटिव डिफेक्ट भी नहीं है प्लेटलेट का, तो ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होना चाहिए, PT भी नॉर्मल होना चाहिए, और APTT शुड बी रेज्ड, एंड इवेंचुअली आपके फैक्टर 8 एसेज और फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट शैल बी लो. तो ये आपको
ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। नाउ विल प्रोसीड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आई वांट यू टू नो। फैक्टर 5 लेडन। फैक्टर 5 लेडन इज़ बेसिकली, इस कंडीशन में होता यह है कि देयर विल बी अ म्यूटेंट फैक्टर 5। अब म्यूटेंट फैक्टर 5 है, सो प्रोटीन सी विल बी अनएबल टू डिग्रेड इट। तो इसको डिग्रेड नहीं करते जाएंगे, तो इसके लेवल्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब जब लेवल्स जो है ना इसके ज़्यादा रहेंगे, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द कोगुलेशन कास्केड एंड लीड टू थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी। तो इट इज़ बेसिकली अ थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी होगी, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ डीवीटी, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ cerebral vein thrombosis, and eventually there will be increased chances of pregnancy losses. So recurrent pregnancy loss है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ लिखा है। तो अगर ये वर्ड कहीं मिलता है तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट फैक्टर 5 लेडन। इसके अलावा देयर कैन बी ए कंडीशन जिसमें प्रोटीन सी या फिर प्रोटीन एस डेफिशिएंसी हो जाए। तो याद रहे कि प्रोटीन सी के हवाले से याद रखना है कि प्रोटीन सी, निमोनिक वाइज बता रहा हूँ कि प्रोटीन सी इज़ फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कोगुलेशन एंड प्रोटीन एस इज़ फॉर स्टॉप ऑफ कोगुलेशन। तो याद रखना है कि सी और एस का काम कोगुलेशन को स्टॉप करना है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये स्टॉप नहीं कर पाएगी एंड इंक्रीज थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी होगी। So next, if I ask you which clotting factor deficiency leads to coagulation, तो जनरली क्लॉटिंग फैक्टर्स ने कोगुलेशन करानी है, लेकिन किस क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी कोगुलेशन कराएगी? एंड द आंसर शुड बी फैक्टर 12। सो यहाँ पर अभी ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ इसको कवर करूँ। तो मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक, ब्लीडिंग की बात नहीं हो रही, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है। सो मोस्ट कॉमन जो एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है, इट इज़ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। और सिमिलरली अगर मैं इसे कहूँ कि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, तो इसमें यू हैव टू मार्क फैक्टर 5 लेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय, the answer should be endothelial cells। प्रोटेक्ट कौन करता है इसे? वॉन विली ब्रांड फैक्टर। फैक्टर 12 डेफिशिएंसी is going to lead to thrombosis। again factor 5, so factor 5 mutation is again going to cause thrombosis। Similarly, if I say factor 5 deficiency, it is going to cause bleeding। Next up, which of the following clotting factors requires calcium? तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बट जस्ट फैक्टर 7, फैक्टर 5, 10, 2, 8 एंड 9। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन? द आंसर शुड बी फैक्टर 13, फैक्टर 5, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। हाई मोलेकुलर वेट काइनिनोजन किसको एक्टिवेट करती है? फैक्टर 12 को। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर्स आर यूज्ड और आर को फैक्टर्स
तो co-factors हैं factor 5 and factor 8. They are co-factors for protein S and protein C. Vitamin K dependent clotting factors कौन से हैं? You already know factor 2, 7, 9 and 10. Prothrombin time is for extrinsic and common pathway. Clotting factors are 2, 7, 9 and clotting factors are 1, 2, 5, 7 and 10. For APTT is for intrinsic pathway and common pathway, and it is for all the clotting factors less factor 7 and factor 13. Moving forward, what is the name of factor 1? Factor 1 is also known as fibrinogen. Factor 2 is also known as prothrombin, and activated factor 2 is known as thrombin. Factor 3 is known as tissue factor or tissue thromboplastin. Factor 4 is known as calcium ions. Factor 5 is labile factor. Factor 7 is stable factor. Factor 8 is anti-hemophiliac factor. Factor 9 is Christmas factor. That is why hemophilia B is also known as Christmas disease, or it is also known as plasma thromboplastin. So tissue thromboplastin is factor 3, plasma thromboplastin is factor 9. Factor 10 is also known as Stewart-Prower factor. Factor 11 is also known as PTA. By PTA I mean plasma thromboplastin antecedent. Factor 12 is also known as Hagman factor, and factor 13 is known as fibrin stabilizing factor. If there is any liver disease, chronic liver disease, it is eventually going to affect the factors that are produced in the liver. Again, the same factors that are for the vitamin K. So vitamin K deficiency हो या फिर liver disease हो, it is eventually that are factor 2, 7, 9 and 10. So ऐसे scenario में obviously platelet count is going to remain normal, so bleeding time is also going to remain normal. APTT is going to be increased. Similarly, PT is going to be increased. So to understand this कि ये क्यों raise हो रहे हैं, we can simply sketch the coagulation cascade. So 12, 11, 9, 10, यहाँ पर 8, 7 से 10, 2, 1. So we have factor 2 here that can be sketched here, factor 9 here, factor 10 here and factor 7 here. So because it is affecting all the chains, that is why both of them are going to be raised. Now the last thing that I want to tell you before closing this lecture is about the international normalized ratio, or simply INR. So INR is basically comparing patient's PT with that of control. So control का मतलब you can say कि normal है. So let's say if the control's PT is 13 और patient का भी 13 है, तो इसका मतलब है कि R is going to remain 1. इसका मतलब है कि patients की clotting time और prothrombin time is normal to that of the control. तो यहाँ पर it is normal, 1 is normal
क्योंकि दोनों का बराबर है. बट लेट्स से इफ़ कंट्रोल्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ 13 एंड पेशेंट्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ 19, इसका मतलब है कि वैल्यू इज़ मोर देन 1. सो मोर देन 1 का मतलब है कि इट इज़ प्रोलॉन्ग. सो बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन test that we do on follow up of patient with or on warfarin therapy.